स्टूडेंट्स जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है उनसे आप लोग गाइडेंस का एक्सपेक्ट कर रहे हो, then you can take our online course for the social science. I'm very happy that सायन भी उसका एक मेंटर है, अभी उसमें सायन भी इंक्लूडेड है, जो तुम लोगों को अच्छा खासा गाइडेंस देगा विद द लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल्स एंड आल्सो लाइक द कंप्लीट प्रीवियस ईयर डिस्कशंस विद द सॉल्व पीडीएफ्स एंड एवरीथिंग. वो एग्जाम प्लानर को मतलब स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए इस तरह से, अगर उधर दिखाई दे रहा है. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agri Addict. So today we are just starting something very new in our YouTube channel. So this is a podcast setup where we are starting a podcast in our YouTube channel. So this podcast we are inviting the students who have been admitted to IRI for the PhD and the PG, and we'll be just getting to know about their preparation strategy and also about their story, like how they have ended up to IRI. And also in the upcoming days we will be just inviting the resource person from the different fields of agriculture, and we'll be getting to know about their story, and they will be also able to give the career guidance to all the agriculture students, which will be a lot more beneficial to the students of agriculture. So in this video we have Sayan, who is All India 5th ranker from the ICAR PG exam in the subject of social science, and today he will be giving a complete list of books that he has referred for this exam, and also like overall his experience throughout the preparation journey and about the exams. And I have got a very good number of requests for this video to make the video on the social science. So when we are uploading the videos on the other subjects, I'm repeatedly getting the same message that, sir, please upload a video on a social science subject for the PG. So finally we are here and we are recording this video. Hopefully the students who are waiting for this video will be getting a lot of benefit from it. Sayan, I welcome you to our podcast. So first thing, before we start, please introduce yourself. Thank you, sir. I am Sayan. I am from West Bengal. I have completed my UG from Palli Shikha Bhavan Institute of Agriculture, Vishwabharati University, and here in IRI, I am in Agriculture Economics Division. Okay, so you have been allotted to Agriculture Economics in Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. Yes, sir. Congratulations on securing the top rank, and also congratulations on getting a seat in IRI New Delhi. Thank you, sir. So finally यहाँ पे हो तुम. Yes, sir. तो कैसा लग रहा है? Almost it's been a week, right? Like almost more than a week. Yes, more than a week. Yes, sir. So कैसा लग रहा है IRI पे आके? IRI का सर माहौल बहुत बढ़िया है. इधर का स्टूडेंट टीचर्स, इधर का जो सीनियर्स है बहुत काफ़ी हेल्पफुल है. मतलब मुझे जो अभी जो लोग मतलब थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में या फिर नए नए एग्रीकल्चर में आए हो पढ़ने के लिए, मैं बस उनको यही बोलना चाहूँगा कि ड्रीम करो कि कभी इधर IRI में आने के लिए चांस लेने के लिए, पढ़ने के लिए. इधर का माहौल बहुत बढ़िया है और बस इतना ही सर. ओके, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो IRI में आके. यस सर. या दैट्स गुड. सो मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि तुम प्रिपेयर कर रहे थे, सो पहले कभी सोचा था कि तुम IRI टारगेट करके पढ़ोगे, या कैसा था कि तुमने कुछ ऐसा प्रिडिक्ट नहीं किए थे कि तुम IRI आओगे? नहीं सर, प्रिपरेशन के शुरू से तो मेरा मतलब यही ड्रीम था कि मतलब IRI में जाना है, IRI में पढ़ना है, IRI में जाके मेरा PG कंप्लीट करना है, और अगर हो सके तो PhD भी उधर से ही करना है. उधर से हमारा बंगाल से काफ़ी सारे सीनियर्स IRI में आए हैं. मेरा खुद का यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे सीनियर्स आए हैं, तो उनके देख के मैंने इंस्पायर हुआ और मैं सोचा कि IRI में आने का. दैट्स गुड. लाइक फाइनली वी लैंडेड एट IRI. यस सर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा प्रिपरेशन के बारे में. कैसे प्रिपेयर किया था तुमने इस एग्जाम को? तो पहला चीज जो MSc, तो तुमने MSc क्यों चूज किया था तुम्हारा करियर के लिए? सर, मुझे ये टीचिंग प्रोफेशन जो है बहुत अच्छा लगता है. मुझे मतलब मैं बचपन से ड्रीम करता हूँ कि कहीं पे भी मुझे इस प्रोफेशन में रहना है, और अगर हमें एग्रीकल्चर में आके अगर मुझे इस प्रोफेशन के साथ जुड़े रहना है तो मुझे PG फिर फर्दर PhD भी करना होगा. तो मैं मतलब तब से ही मेरा जब ऐसे 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स IRI में जाना है, PG पढ़ना है, PhD पढ़ना है. ओके, तो तुम पहले से ही मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसाइडेड थे कि तुमको असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग फील्ड में ही जाना है, लाइक एग्रीकल्चर फील्ड में ही रहना है, इसलिए तुमने MSc को चूज किया था? Actually sir, before 5th semester I was thinking about AFO exam, and I was preparing for them for almost 6 and 7 months, and somehow I realized that no, I am not happy, I am not getting that much of pleasure with this preparation, and so then I decided that no, I have to remain in MSc and remain in teaching profession, so I choose to do PG examination. Okay,
So this is why like you have chosen MSc. Yes sir. That's nice. So तुमने इस सब्जेक्ट में आके like why social science? इस सब्जेक्ट में social science क्यों चूज किया तुमने? सर मुझे मतलब बचपन से ही उस टाइप का सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा पसंद है जिसके मैं मतलब पूरा सोसाइटी के साथ मतलब सामने से मैं देख पा रहा हूँ, कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मतलब हर कोई सब्जेक्ट सोसाइटी से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, पॉलिटिकल साइंस, ये सब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ जिसका इफेक्ट मैंने सोसाइटी में हर वक्त देखने मुझे मिल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे you will be going for सोशल साइंस। यस सर। ओके ठीक है, तुमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि तुमने क्यों एमएससी को चूज किया और क्यों सोशल साइंस को चूज किया था। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा प्रिपरेशन के बारे में। तुमने लगभग कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तुम्हारा? मैं सर ऑलमोस्ट 5th सेमेस्टर का अंत होने वाला है, तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। सो इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर, लाइक मोर देन अ ईयर। मोर देन अ ईयर तुमने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। 1.5 ईयर। 1.5 year। 5th सेम मतलब 6 6 7 यस 6 ओके, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर तक तुमने प्रिपरेशन किया है Yes, एग्जाम sir। के लिए। सो जब तुमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करने का, तो कैसा अप्रोच था तुम्हारा? सर मुझे जितना लगता है कि किसी भी एक प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के पहले, किसी भी एग्जाम का पहले उसका सिलेबस को डिटेल स्टडी करना चाहिए। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं कि हमारा सोशल साइंस में टोटल 4 स्ट्रीम है जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। वो है पहला वाला है एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर एंड करंट अफेयर्स। दूसरा हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एंड साथ में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से। तो मैंने 5th सेमेस्टर के अंत से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स फिर एक्सटेंशन। मैं यही बोलना चाहूँगा कि साथ साथ में जनरल एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की ओर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वो रैंक आने में दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जैसे तुमने बोला कि 6th सेमेस्टर से तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। Yes, sir। जब तुम स्टार्ट कर रहे थे वहीं से तुमने फ्रॉम द स्क्रैच तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, या उससे पहले भी तुम्हें कुछ रेसिडुअल नॉलेज था कि सोशल साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में तुम ऑलरेडी जानते थे, सिलेबस के बारे में ऑलरेडी जानते थे, या तुमने उसी टाइम से ही तुमने सब कुछ स्टार्ट किया था? सर मतलब इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन दोनों सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 2nd सेमेस्टर ऑनर से मैंने जब मेरा कोर्स में एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स आ रहा था, तो तब मुझे वो वाला कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको मैं थोड़ा मतलब ध्यान से पढ़ता था। तो हाँ, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज वो 6th सेमेस्टर का पहले से भी मेरा था, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा मुझे अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट, इसी वजह से। ओके ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट बुक्स लाइक क्या क्या रेफरेंसेस तुमने पढ़ा था इस एग्जाम के लिए, और स्टूडेंट्स को भी ये भी बताओ कि कौन कौन से बुक्स पे जाना चाहिए और कौन कौन से बुक्स एक्चुअली मदद करेंगे इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, एक 1 by 1 अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी डिटेल में बताना। ओके सर। तो जैसे कि टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं हमारा एग्जाम में, तो उनमें से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे जनरल एग्रीकल्चर के ऑलमोस्ट, और बाकी जो 95 क्वेश्चन है उनमें से एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट लगभग 50-50 रहता है। तो मैं पहले अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं, तो जो 50 क्वेश्चन है इसके लिए, तो एग्रीकल्चर क्वेश्चन टोटल 5 जगह से क्वेश्चन आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिनेंस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेशन, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं जो पढ़ा था वो बुक है H.A. आहूजा सर का बुक, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। साथ में सुब्बा रेड्डी सर का जो बेसिक बुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बुक है हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए, तो मैंने वो पढ़ा था। साथ में मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने वो H.A. आहूजा सर का बुक पढ़ा था, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था मुझे, क्योंकि जो हमारा सुब्बा रेड्डी सर का जो बुक है उनमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन थोड़ा कम है, तो उसको लिए मुझे H.A. आहूजा का बुक बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि उधर से काफ़ी क्वेश्चन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। फिर फिनेंस मैनेजमेंट के लिए सुब्बा रेड्डी सर का बुक इनफ है उधर पर उसके लिए, तो मैं फिनेंस एंड मैनेजमेंट एंड कोऑपरेशन के लिए बोलूँगा कि सुब्बा रेड्डी सर का बुक के लिए। साथ में मार्केटिंग के लिए आचार्य अग्रवाल सर का बुक, उधर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ने के लिए मार्केटिंग के लिए। साथ में प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट उधर से पढ़ने के लिए VT राजू सर का बुक्स बहुत ब्रीफ बुक है एवं बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के लिए। साथ में फार्म मैनेजमेंट उधर सुब्बा रेड्डी सर का बुक इनफ है। साथ में ये पूरा अगर मतलब ये जब एग्जाम प्रिपरेशन का जो टाइम चलेगा उसके टाइम ये पढ़ना है, लेकिन जो अंत में 2-3 महीना होगा उस टाइम में मैं बोलूँगा कि सुभाष चंद्र सर का बुक्स बहुत ही जीस्ट बुक है, उधर से अंत में जाके वो बहुत फायदेमंद है। तो सुभाष चंद्र सर का इंट्रोडक्टरी सोशल साइंस बुक्स है वो पढ़ने के लिए। फिर आता हूँ मैं एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन के लिए कि मैं शुरू किया था GL रे सर का बुक्स और सागर मंडल सर का बुक्स के लिए। दोनों बुक्स में ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ जगह डिफरेंस है, तो मैंने पहले GL रे पढ़ा था, तो फिर उसके बाद में जो नया टॉपिक है सागर मंडल सर के बुक में वो पढ़ा था मैंने।
फिर मैं आता हूँ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट पार्ट के लिए, उसके लिए ए संधू सर का बुक्स सब लोग पढ़ते थे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो। रूरल सोशियोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो रूरल सोशियोलॉजी के लिए मैं वो सागर मंडल सर का और एक अलग से बुक आता है, अगर हो सके तो वो मतलब टाइम मिले तो पढ़ने के लिए मैं बताऊंगा। फिर आता हूँ मैं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने सुभाष चंद्र सर का बुक्स का जो पीछे जो पोर्शन है वो साथ में मेरा जो क्लास नोट्स है मैंने वो पढ़ा था सुभाष एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के लिए। एंड जनरल एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के लिए मैं बताऊंगा कि निमरत सुंदर सर का बुक्स, अरुण कत्तन सर का बुक्स, एंड साथ में एसआर कांतवा सर का बुक्स एंड नारायण नागरे सर का जो बुक्स है। क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर के ऊपर ऐसा बहुत लोग करते हैं कि ध्यान थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि हम लोग का मतलब कोर सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जनरल के ऊपर कम। क्योंकि लेकिन मैं बताऊंगा कि जनरल एग्रीकल्चर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और जो 25 क्वेश्चन है वो बहुत रैंक डिसाइडमेंट में बहुत मायने रखते हैं। तो जनरल एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तुम बोल रहे थे, मुझे लग रहा है कि प्लान साइंस से भी बहुत सारा बुक्स है, जो बोलते हैं कि प्लान साइंस ये सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा बुक्स को पढ़ना रहता है, लेकिन जो तुम लिस्ट दे रहे थे लग रहा है कि सोशल साइंस में ही बुक लिस्ट बहुत बड़ा है। हाँ, तो एक्चुअली आगे जाके पीजी पीएचडी करना है तो मतलब वो जो उसका जो बेस है उसको उधर से ही करना, मतलब यूजी से ही शुरू कर देना चाहिए उसको, बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए। साथ में और एक बुक मैंने जो बताना भूल गया था, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन श्रुति मैम का बुक, वो मतलब उसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। श्रुति मैम का जो बुक है इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन, तो वो भी मैं पढ़ने के लिए मतलब सजेस्ट करना चाहूँगा। जो भी बुक्स सायन मेंशन कर रहा है सारा बुक्स का लिस्ट और कंप्लीट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, जो भी इसको परचेस करना चाहेगा तो उस लिंक से परचेस कर सकते हो। लगभग तुमने कितना बुक्स बता दिया अभी? हाँ, कुल मिला के 10 से 12-14 बुक्स हो गए हैं। ओके, लाइक 12-13 बुक्स। 12-13 जो सारे टॉपर्स है लाइक ये सारे, हाँ ये सब लोग पढ़ते हैं, इसके छोड़कर भी और भी सारा बुक्स है। क्योंकि मैं बताऊंगा ना, मतलब कुछ ऐसे 5-6 क्वेश्चन आ जाएगा ना कि ये सारा बुक्स अगर तुम मतलब हर एक वर्ड भी पता है फिर भी नहीं हो सकता है। मैं इस साल भी देखा हूँ एक क्वेश्चन जो हमारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, वो जो इतना बड़ा सा बुक आता है, तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। फिर मैंने बाद में देखा कि उधर से आया है, तो मतलब इतना बुक्स पढ़ने के बाद भी वो काफी नहीं है, उसके छोड़ के भी और भी पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट को जितना हो सके पढ़ो। मैं बताऊंगा कि 6 से 7 सेमेस्टर तक जितना हो सके नया नया बुक्स पढ़ो। 7 सेमेस्टर में बाद में जाके और नया बुक्स पढ़ने का मतलब मैं सजेस्ट करूंगा ना पढ़ो, जो तुमने पिछले पढ़े हो उसको ही बार बार से रिवीजन करो, यही बोलना चाहूंगा। ओके, तो तुमने कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत सारे बुक्स का लिस्ट भी दे दिया, शायद लाइक स्टूडेंट्स डर भी गए होंगे कि इतना सारा बुक्स नहीं, जो लोग सोशल साइंस को मतलब पसंद करते हैं तो उन लोगों के लिए ये मतलब कॉमन है, वो उतना नहीं डरेगा शायद, मुझे जितना लगता है। ओके, सो अगर स्टूडेंट्स तुम लोगों का कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग द बुक्स जो सायन ने मेंशन किया है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे सायन हमेशा रहेगा और रिप्लाई करता रहेगा जो भी तुम लोगों का क्वेरीज है। और अगर तुम लोग कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस के लिए सोच रहे हो कि एक गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, जहाँ पे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है उनसे आप लोग गाइडेंस का एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन यू कैन टेक अवर ऑनलाइन कोर्स फॉर द सोशल साइंस। लाइक आई एम वेरी हैप्पी दैट सायन भी उसका एक मेंटर है, अभी उसमें सायन भी इंक्लूडेड है, जो तुम लोगों को अच्छा खासा गाइडेंस देगा विद द लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल्स एंड आल्सो लाइक द कंप्लीट प्रीवियस ईयर डिस्कशंस विद द सॉल्व पीडीएफ्स एंड एवरीथिंग। जो भी इस कोर्स में रहेगा वो काफी ज्यादा तुम लोगों को हेल्प करेगा। अगर तुम लोग एक स्क्रैच से पढ़ना चाहते हो और प्रॉपर गाइडेंस का इंतजार कर रहे हो तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर आवर कोर्स। सायन, लेके ये तो हो गया पूरा बुक लिस्ट का, इसके अलावा भी कोई कुछ है जो प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, जो तुम सजेस्ट करना चाहोगे स्टूडेंट्स को? हाँ सर, मैं यही बोलना चाहूँगा, जो मैंने जो बताया कि टोटल 95 क्वेश्चन हमारा कोर्स सब्जेक्ट से आता है, उनमें से मतलब 50-50 क्वेश्चन एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स। मैं अगर सोच लूँ कि टोटल 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आ रहा है ना, तो उनमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि बहुत ही ईजी रहता है। तो उसको देख के मतलब एग्जाम में हॉल में बैठ के स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन उसको लेके इतना खुश होने का वजह नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे भी आ रहा है, आपको भी आएगा, सबको आ जाएगा वो क्वेश्चन। वो कोई रैंक डिसाइड में कुछ भी फायदा नहीं करेगा। आपको बस ध्यान रखा है उस 15 में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर बाद में आता है ऐसा 20 से 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मतलब मीडियम टाइप का क्वेश्चन रहता है। तुम पढ़ोगे तो आएगा, नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो उधर से बोलूंगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है और उसको सही भी करना है। तो नहीं तो अगर मतलब थोड़ा उसको मतलब दिक्कत लाए तो छोड़ दिया तो रैंक उधर भी कम आ सकता है उसकी वजह से भी।
फिर जो हार्ड टाइप के क्वेश्चन रहते हैं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि उधर से बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको सच में लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर ही अटेम्प्ट करो। वो 10-15 क्वेश्चन बेकार में अटेम्प्ट करने का मुझे मतलब नहीं। तुम्हें लगेगा कि ये कर दे तो शायद आ जाएगा, लेकिन उसमें सही होने से ज्यादा गलत होने का चांस ज्यादा है। सो दिस इज योर गाइडेंस टू ऑल। ये सर मैं यही बोलना चाहूंगा। ओके, तो जैसे कि लाइक हमारा मॉक टेस्ट बंडल था प्रीवियस ईयर के लिए और तुमने मॉक टेस्ट बंडल को परचेज किया था, तो क्या रोल था ग्रेड का तुम्हारा प्रिपरेशन में? कैसा हेल्प हुआ तुम्हें, अगर कुछ हेल्प हुआ है तो? हाँ सर, काफी मतलब अच्छा खासा उधर मॉक टेस्ट था। उधर मतलब टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट था, फिर होल सिलेबस का था, फिर अंत में एग्जाम के पहले पहले 10-15 दिन में फिर नया नया क्वेश्चन आ रहा था। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि एग्जाम को मतलब क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो मतलब आप अगर 4th ईयर में हो तो मतलब ऑलमोस्ट अगर जून में या जुलाई में एग्जाम होगा तो मतलब जनवरी से ऑनवर्ड्स तुम्हें मतलब बहुत कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट देना चाहिए। मतलब हर हफ्ते में कम से कम 1, हो सके तो 2। फिर जो मतलब जून में अगर एग्जाम होगा तो पूरा जून में एग्जाम मत दो, लेकिन जून के पहले मई तक बहुत ज्यादातर एग्जाम वो दो, मॉक टेस्ट दो। और एग्रीगेट का मॉक टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सर यही बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट को और ज्यादा मतलब नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ सीरीज और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नंबर ऑफ हाँ क्वेश्चंस ज्यादा करने के लिए। अभी तो तुम हो इसको करने के लिए, लाइक यू विल बी हैंडलिंग इट वेरी नाइसली, आई होप सो। एंड जो भी मॉक टेस्ट का प्लान करेंगे अच्छे से प्लान करके, स्टूडेंट्स जितना एक्सपेक्टेशन रहेगा स्टूडेंट्स का कि इतना मॉक टेस्ट हमें चाहिए, इतना क्वेश्चन हम मिनिमम सॉल्व करना होगा, तो उतना मॉक टेस्ट हम जरूर ट्राई करेंगे कि वो अवेलेबल हो जाए। और मॉक टेस्ट का क्या रोल था प्रिपरेशन में, कि तुम कैसे मतलब इस प्रिपरेशन में इसको इंक्लूड कर दिए थे? जैसे कि तुम हर एक टॉपिक कवर करने के बाद मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे थे टॉपिक वाला, या लास्ट में आके सारा मॉक टेस्ट अटेंड किया? नहीं, मॉक टेस्ट हर एक टॉपिक खत्म करने के बाद भी मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मतलब थोड़ा थोड़ा ये सब मतलब तुम जो पढ़े हो शायद लास्ट 1 महीने में जो पढ़ा हो उसके पढ़ने के बाद मैंने मॉक टेस्ट दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 महीने में मुझे मेरा प्रिपरेशन कितना दूर तक गया है, ये क्या काफी है, अगर ये काफी नहीं है तो और कितना चाहिए। तो ये तो अगर लास्ट में सारा मॉक टेस्ट तुम मतलब गैदर करके रख दोगे फिर एग्जाम के पहले सब कुछ देख के चलेंगे तो उसके लिए उतना फायदा नहीं है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट हमारा मतलब मार्क्स जानने से भी ज्यादा कहाँ हम गलत कर रहे हैं कहाँ हम सही कर रहे हैं वो जानने की जरूरत है। तो इसके लिए जो प्रिपरेशन का जो मतलब फेज चलेगा साथ साथ में मॉक टेस्ट भी देना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं इस पॉडकास्ट के एंड पे। तो बिफोर वी कंक्लूड, क्या मैसेज देना चाहोगे जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अभी अपकमिंग ईयर्स में प्रिपेयर करना चाह रहे हैं? पहले तो सर मैसेज देने के पहले मैं मेरा जो यूजी का टीचर्स थे, पूरा हमारा इकोनॉमिक्स डिवीजन का, मेरा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का, साथ में मेरा जो जो सीनियर्स थे मुझे बहुत हेल्प किए थे उनमें से, तो मैं सब लोगों को मैं थैंक यू करना चाहूँगा। कि साथ में मैं ये मैसेज स्टूडेंट को, मेरा जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर मॉक टेस्ट दो, बार बार रिविजन करते रहो, और एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो रहा है तब तक कभी भी ये सेटिस्फेक्शन खुद के अंदर लेके आने मत दो कि पढ़ाई कंप्लीट हो गया है। शायद आपको सब कुछ पढ़ लिए लेकिन फिर भी रिवीजन करो, जितना रिवीजन करोगे तो उतना इनपुट आते जाएगा और वही बाद में एग्जाम के टाइम हेल्प करेगा। साथ में एग्जाम हॉल में बैठोगे बहुत काम रहने का कोशिश करो, थोड़ा उतना मतलब परेशान होने का वजह नहीं है, ये बहुत अच्छे से तुम प्रिपेयर करे हो और एग्जाम भी बहुत अच्छे से ही होगा। तुमने काफी अच्छा मैसेज दिया था और मोटिवेशन भी दिया स्टूडेंट्स के लिए। So Sayan is your example, like he has secured all India 5th rank in this exam and finally came into IRA New Delhi and he is pursuing his MSc from the subject of agriculture economics. अगर आप लोग भी इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहोगे और अच्छा खासा रैंक निकाल के इंडिया टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का सोच रहे हो, obviously like you can follow like whatever guidance he has given and follow the list of books that he has referred. जो भी डाउट्स होगा कोर्स के रिलेटेड या जो भी डाउट्स होगा बुक्स के रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस का सोच रहे हो कि गाइडेंस चाहिए तुम लोगों को, ऑब्वियसली देन यू कैन कंसिडर आवर ऑनलाइन कोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल फॉर द 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सोशल साइंस। सैन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तुमने इतना टाइम देके हमारे साथ जुड़ के इस पॉडकास्ट में काफी ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया स्टूडेंट्स को, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर। तो लाइक एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड हमने एक बुक बनवाया था अग्रीगेट के नाम से, जिसमें काफी अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग लाइक व्हाट आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, एंड मेरा भी स्टोरी है कि मैंने क्यों इसको स्टार्ट किया था और कैसे स्टार्ट किया था। सो एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक तुम्हें देना चाहूंगा थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस एंड आल्सो प्रोवाइडिंग द वैल्यूएबल गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स।
मैं सर ये बुक के मैं पहले भी देखा हूँ, तो मैं एक ही बोलना चाहूंगा कि इसकी बुक के अंदर ना एग्जाम प्लानर है, वो एग्जाम प्लानर को मतलब स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए इस तरह से। अगर उधर दिखाई दे रहा है तो मैं बोलना चाहूँगा ये एग्जाम प्लानर को फॉलो करना चाहिए, तो ये एग्जाम मतलब स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन में बहुत मदद करता है ये एग्जाम प्लानर जो है। So that is how like why we have included, हमने इस स्टडी प्लानर को एज अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ भी इंक्लूड किया है वेबसाइट में। जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली वेबसाइट में जाके इसको प्रिंट ले सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके उसका हेल्प भी ले सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।